We are back up with our current affairs series, the lectures that we have been doing for the last 1 year. Okay. Again, we are back with the very important current affairs for the last week, the second week of August. Okay. So today is 19th of August. This lecture was scheduled for 18th, but due to some issues, technical issues, and we will be taking this lecture today. We have taken 3-4 topics, like those are very important for the prelims point of view as well as the mains point of view. And as we have done in our earlier classes, we are going to make the analysis multidimensional, so that we are going to, even if we are covering one major heading, then also we are going to cover major parts of other headings. Okay. So the first one that we are going to take today is from environment section, plastic waste management rules 2021. These are actually plastic waste management amendment rules 2021. The earlier rules for plastic waste management, they have been amended and certain additions have been made. Okay. So we will be dealing with the plastic waste management. We all know plastic is toxic waste. Plastic is not as toxic as we believe it to be. There's a very certain reason behind that, because plastic is chemically neutral. Okay. It does not decay very fast. But yes, in natural environment, it does not decay very fast. It gradually leaches into the ground. Gradually leaches into the ground means कि over a period of time, for example, around 500 years, the chemical constituents of the plastic break down and they leach into the soil, thereby contaminating the groundwater, the river streams and the soil as well. Why? Because हम ये सारे pollutants को क्यों पढ़ते हैं, right? 12th 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. ठीक है. 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पूरा उस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो why are we interested in reading that whole chapter? Because that chapter tells us कि what kind of chemical reactions are going to affect us. ठीक है. What are the chemicals that we are surrounded by and how are these chemicals going to affect us? ठीक है. Like how is photochemical smog formed? ठीक है. Why and how is ozone depleted? How is plastic going to affect us? तो plastic is a polymer. ठीक है. Polymer are basically repetitive chains of monomers. ठीक है. Like polyethylene. तो एथीन एक मोनोमर है, उसका अगर हम बहुत सारे सीरीज चेन्स में बना दें तो वो पॉलीइथीन. पॉली मतलब मल्टीपल. तो पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन. अंडरस्टूड. तो ये तो बेसिक टर्म है. लेकिन जब ये केमिकल्स या प्लास्टिक इज अ केमिकल, ऑफ कोर्स इज अ केमिकल कंपाउंड, व्हेन इट डिसइंटीग्रेट्स, ओके, what it does is it goes back into the nature. How does it go back into the nature? It goes through environment. It goes through the soil basically. ठीक है. So we are going to study. Moreover, soil pollution was an earlier, like soil pollution has now become a secondary concern. Now what primary concern is the marine eco pollution that is being caused due to what? Plastics. ठीक है. Because in the we all know that there's a whole garbage patch in the North Atlantic Ocean. ठीक है. North Atlantic Ocean किसके किसके बीच में? Northern America and of course the Western Europe. ठीक है. तो Northern America और Western Europe के बीच में जो एक region है, ठीक है, that region has now become a garbage patch. Garbage patch, and around 60% of the garbage that is contained in the ocean is plastic. Plastic is not only going to harm humans, it is also going to harm other organisms and eventually humans also. As we have seen कि plastic now not only affects chemically, it is also creating physical disturbances in the environment. Like several turtles and tortoises, plastic straws get stuck into their nose and they die. And we often see such images on the internet, in our social media feed and all. And now this is becoming a menace. Okay. So I hope now we should begin. I hope you understood. Thank you. I hope you understood कि why is plastic harmful. ठीक है.
Now, why in news? Because government has notified the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021 for the elimination of certain kind of single-use plastics. Now, plastic is, as I told in the very beginning, plastic is not as such a very big problem for us, because plastic has actually revolutionized the whole logistics sector, whole packaging industry, and after the invention of plastic, many things became very easy. Okay? Like we have saved a great deal upon the like natural resources. Otherwise we would have been using either wood or either wood or iron or steel or such kind of raw, like natural resources we would have been using up. But after the invention of plastic, like a packaging industry, this whole the Tetra packs that we use today for milk and fruit juices, food packaging, that would not have been possible without the invention of plastic. So plastic has been certainly one of the greatest inventions of our like human history. It has revolutionized our life, the way we see it. We can't think of our life without plastic substances. Okay? Around us there is, everywhere there is plastic. But what we need to do is, again, sustainable development. We can't stop our growth or development, but what we can choose is, we can choose to develop sustainably, so that our use of resources does not deplete earth of the resources for the future generation. The first consideration is that. The second consideration is that our use of resources should not contaminate the environment, so that the next generations are devoid of the kind of environment that we have received. Okay, so it is our responsibility to use our resources sustainably, so that we also leave the scope for our future generations. Okay, so in that pursuit, India has been very India's plastic footprint is not very high. The very important and the first point is, India's plastic footprint, despite its huge population and despite the poor management of waste in India, India's plastic waste footprint has not been very high. And our consumption also for the plastic has not been very high. We will see as to how we are one of the least consuming, per capita consumption is one of the least. Okay. India is also one of the greatest recyclers of plastic. That means we are recycling a lot of the plastic that we use. Now, this amendment notification has specifically come for single-use plastics. Now, single-use plastics are good, okay? Plastics are good, but single-use plastics are not good, because दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे आपको कंसिडर करनी पड़ेगी whenever you are going to deal with environment. ठीक है, तो एनवायरमेंट में फर्स्ट वन इज कि किसी पॉल्यूटेंट का एनवायरमेंट पे इंपैक्ट क्या है. सेकंड वन इज कि व्हाट आर द लेजिस्लेशंस दैट आर गोइंग टू काउंटर दैट. ओके, तो द लेजिस्लेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, द इंपैक्ट वी आर गोइंग टू सी. ओके, the very first important point is, okay, we'll be taking that, I believe we should take that later. Right now, early in 2018, Government of India asserted on the eve of like Environment Day, it is on 5th of the June, we all know, okay, that India will be eliminating the use of single-use plastic by 2022, by the end of 2022. That means we are going to end the use of single-use plastic. Now, what is single-use plastic? Single-use plastic वो प्लास्टिक है जो आप एक बार यूज करते हैं. That is it. अब we are going to discuss कि इसके ramifications क्या हैं. तो सबसे पहले जो सबसे important चीज है कि plastic manufacturing is an energy intensive process. ठीक है, because you have to like boil, you have to melt the plastic, है ना, and then make some chemical reactions in the. तो plastic making is an energy intensive process in itself. मतलब अगर प्लास्टिक बना रहे हैं तो उसमें हमारा a lot of energy is going to be consumed. तो हमारा कंसिडरेशन क्या होना चाहिए कि whenever we are going to manufacture anything, whenever we are going to manufacture any good, ठीक है, तो it should have at least so much usage that the amount of energy that we have spent in manufacturing it is recovered. At least that is recovered. ठीक है, तो इसको कहते हैं यूटिलिटी, मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि आपने इस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ एनर्जी कंज्यूम की एंड देन यू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट.
अब ये सारे रॉ मटेरियल्स जो थे, ठीक है, रॉ मटेरियल से आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिला। रॉ मटेरियल के साथ साथ आपको एनर्जी भी देनी पड़ी, एंड यू नो एनर्जी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ऑन द वर्ल्ड। एनर्जी मतलब क्या? फॉसिल फ्यूल। वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू यूज द फॉसिल फ्यूल फॉर all kind of our energy needs. Now we are gradually shifting from fossil fuel to renewable, but still the majority of our energy demand comes from is fulfilled from the fossil fuels. And the use of fossil fuels का मतलब क्या हुआ कि you are going to not only deplete the fossil fuel resources which are non-renewable, but you are also going to emit some amount of carbon dioxide and the related pollutants into the environment. ठीक है, तो अब जो भी आप चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसका यूज ऐसा होना चाहिए कि इसकी जो इनपुट में एनर्जी और रॉ मटेरियल्स आपने लगाए हैं, है ना, उसका एटलीस्ट कुछ फ्रैक्शन आप रिकवर कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रॉ बनाने वाली कंपनी ओपन करते हो, स्ट्रॉज आर सिंगल यूज प्लास्टिक्स। यू वंस यू यूज द स्ट्रॉ एंड देन यू डिस्कार्ड इट, इट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड अगेन. That means all the energy that was used for making straw was used only for once. ठीक है, economically or commercially it might be beneficial, okay, but when we take commercial considerations, we do not always take the environmental considerations. Like हम GDP calculate करते में environmental externalities को consider नहीं करते. ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट करते में हम एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज को कंप्यूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी का वैल्यू ज्यादा आता है एज कंपेयर टू व्हाट वी वुड गेट इफ वी कंसीडर द इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज एज वेल, है ना, कि अगर आपकी कंट्री का जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, ठीक है, तो आपकी कंट्री ने ये कंसीडर नहीं किया कि 1.3 ट्रिलियन का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जनरेट करने में आपको कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी और कितना कितना आपने कार्बन इमिट किया, उस कार्बन का इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। अगर वो सारा कैलकुलेट करके एडजस्ट करें तो ये वैल्यू इट विल ऑफ कोर्स डिक्रीज. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल जीडीपी या ग्रीन जीडीपी. when the country is calculating its GDP based on the calculations and considerations of environmental externalities, then that is called environmental या green GDP. Similarly, whenever a company is making some product, for example straws, it is not going to consider the externalities that might have been created due to the creation of a plastic straw. Okay, it is only going to consider what input cost it bears, what energy cost it bears, what wages does it pay to its employees, and then it seeks a profit out of it. But then again, that company is not going to consider the cost that straw is going to impose upon the environment. And environment is a collective human thing. Environment belongs to every one of us. Okay? So that is why single-use plastics have a very high externality. But plastics are not going to have always very high externalities. Yes, but single-use plastics have a very high externality. Like earbud, आप earbud खरीदते हो, अगर उसमें प्लास्टिक स्ट्रॉ लगी होती है एक बहुत थिन से, तो that has a negative externality. ठीक है, तो सिमिलरली आप पॉलीबैग, आप मार्केट में जाके सब्जी खरीदते हो and then you carry that vegetable to your home in a poly bag. ठीक है, that poly bag you are not going to use it again, है ना, you are not going to use it again and again and again. What you do, you usually discard it, है ना, तो इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना जरूरी है. Now plastic waste in India, if we see about the statistics, approximately 9.54 million tons per annum. TPA is tons per annum. Around 9.4 million tons per annum of the plastic is generated in India. Out of it, 26,000 tons per day is generated. ठीक है, that means we are generating huge amount of plastic. Recycling rate is very high. In India, the 60% of the plastic that we are generating comes from the recycled waste. ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्लास्टिक यूज है उसका 60% अपन रिसाइकिल कर लेते हैं. ओनली 40% गोज इनटू लैंडफिल्स और वेस्ट, whereas the global average for plastic recycling is around merely 20%. 9400 tons of plastic waste. ठीक है, तो 9400 tons is this 40%.
मतलब अराउंड 9400 टन्स ऑफ प्लास्टिक गेट्स डिस्कार्डेड, इट इज नॉट रिसाइकिल्ड। अब रिसाइकिल क्यों नहीं किया जाता है, उसके पीछे भी रीजन है कि प्लास्टिक रिसाइकिल करने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इट इज अगेन एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो जो कंपनी प्लास्टिक रिसाइकिल कर रही है, इट विल टेक द कंसिडरेशन कि इसको कितना प्लास्टिक रिसाइकिल करना है, सो दैट इसका कॉमर्शियल बेनिफिट भी मेंटेन रहे। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि एक प्लास्टिक को 3 से 4 बार से ज्यादा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो प्लास्टिक का थर्मल डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड इट रिमेन्स ऑफ नो यूज। तो इट इज नॉट कि अगर ऐसा होता कि प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड एज मेनी टाइम्स एज वी वांट, तो हम एक बार ही अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बना लेते हैं एंड दैट वुड हैव बीन रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट दैट इज नॉट फिजिकली एंड केमिकली दैट इज नॉट फिजिबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थर्मल डीजनरेशन दैट प्लास्टिक फेसेस। तो थर्मल डीजनरेशन इज नो रॉकेट टर्म, इट इज वेरी सिंपल टर्म। थर्मल डीजनरेशन का मतलब प्लास्टिक की केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हो जाती हैं सो दैट दे आर नॉट ऑफ यूज एनी मोर। 2-3-4 बार रिसाइकिल करने के बाद प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एनी फर्दर, ठीक है। तो अराउंड 9400 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज पर एनम इज discarded into what, landfills either or the water streams, okay, or it might end up into the oceans also. So this is about this fact, these facts are about India. Secondly, if we see about the per capita consumption, ठीक है, तो यूएस में it is around 109 tons, ठीक है, 109 kg, sorry, it is per capita, per person 109 kg of plastic is annual consumption। मतलब एक बंदा यूएस में 109 kg ऑफ प्लास्टिक कंज्यूम करता है 1 ईयर में। यूरोप में 65, चाइना में 38, ब्राजील 32 एंड इंडिया is having very low per capita consumption. It might be due to the huge amount of population, but still China is also having a relatively comparable population with India. Still China is having 38 kg of plastic consumption per annum, per capita. But India में per capita consumption is very low. One of the reasons that we can cite is कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, बिकॉज प्लास्टिक का यूज जो अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ भी है, तो वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या फूड पैकेजिंग सेक्टर में है। फूड पैकेजिंग इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो yes, India is also growing. The consumption rate of plastic in India is also now increasing. Why? The middle income group and the upper middle income group of the strata of the population is increasing, right? Now people are going to work. More people are going to work. That means lesser people remain for home work, at home. ठीक है, more number of women are now getting into the workforce. उसकी वजह से क्या हुआ? Lesser number of women are now remaining at home or for like the regular meals that were being prepared. That means we are also going to switch to a dietary pattern very similar to the western countries. वेस्टर्न कंट्रीज में डाइटरी पैटर्न क्या है? पैकेज्ड फूड का डाइट पैटर्न है, बहुत सारा फूड पैक्ड है और वो सारा फूड पैक्ड होने में प्लास्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है। तो यूएस में बहुत ज्यादा, यूएस का डाइटरी पैटर्न पूरी तरीके से पैकेज्ड फूड पे है, ओके, ड्यू टू विच वी कैन कंसिडर दैट द मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक कंजम्पशन इज यूएसए इज ऑन द अकाउंट ऑफ व्हाट? फूड पैकेजिंग। That was about the per consumption food, per capita consumption of plastic. Now if we talk about the plastic waste as a threat to the marine ecology, ठीक है, marine ecology मतलब oceans में, river streams में how plastic is affecting our ecology, ठीक है। तो अभी one of the very important term has been in news, even there was a question in UPSC about microplastics, ठीक है। तो 5 माइक्रॉन से जब कम होता है, ठीक है, अगर किसी प्लास्टिक का साइज, किसी प्लास्टिक के प्रोडक्ट का साइज 5 माइक्रॉन से कम होगा, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेनेस। अब ये माइक्रोप्लास्टिक बनती कैसे है? ये नेचुरली नहीं बनती है, दीज आर लाइक प्लास्टिक के डीजेनरेशन से बनती है। लाइक बहुत सारा प्लास्टिक ट्रैश व्हेन इट एंड्स अप इन द ओशियंस, तो ओशन में वेव्स, टेम्परेचर, वाटर, है ना, सैलिनिटी, इन सारे कंपोनेंट्स के साथ मिलके इस प्लास्टिक का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड देन व्हाट बिकम्स इज
a microplastic, and microplastic has now become a part of our food chain. Even human cells have been contaminated with what? Microplastics. Fish or marine animals, like the fish we eat, okay, and all the marine products that we eat, there's a high incidence of having those particles or those animals or those the food stuff that we are eating being contaminated with microplastics. अभी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है? बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के 5 माइक्रोन से भी बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो कि ओशंस में फ्लोट कर रहे हैं, जो कि फिशेस का फूड चेन में आ गए, फिश के फूड में आ गए और फिश से ह्यूमन के फूड चेन में आ गए हैं, एंड दैट इज like one of the greatest threats of microplastic. But again, microplastic is not going to cause chemical changes into our body, because microplastics is plastic. Plastic is not going to be very stable compound, ठीक है? But again, it might create other diseases, and it is again a like matter of research and medical research right now, ठीक है? There are 8 million tons of plastic waste entering ocean every day. 8 million tons of plastic is entering oceans every day. Total plastic in the ocean is around 150 million tons. Plastic packaging, as I said, majority of the plastic that is ending up in the oceans or in the landfills is from the packaging industry, and that also from food packaging. In 2014, there was 1 kg of plastic. There was 1 kg of plastic for every 5 kg of fish, and by 2050 it might exceed the like number of fishes. तो अभी तो क्या सिनेरियो है कि हर 5 kg ऑफ फिश के लिए 1 kg 1:5 का रेशियो है प्लास्टिक और फिश का, लेकिन बाई 2050 जो प्लास्टिक है वो उसका वॉल्यूम फिश के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा. टू कंट्रोल दिस, plastic waste management rules were brought. The first ones were brought in 2011, जहां पे मिनिमम थिकनेस प्रिस्क्राइब की गई 40 माइक्रॉन्स. 40 माइक्रॉन्स का मीनिंग ये हुआ कि आप जो भी प्लास्टिक की शीट मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, उस शीट का जो साइज होगा, थिकनेस का साइज जो होगा, वो 40 माइक्रॉन से कम नहीं हो सकता, ठीक है? 40 माइक्रॉन. नाउ व्हाई 40 माइक्रॉन्स? बिकॉज द थिकर प्लास्टिक यू मेक, ठीक है, उसकी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम बॉटल्स का देखें तो बॉटल्स का 70 माइक्रॉन्स के अराउंड, 70 to 75 माइक्रॉन्स के अराउंड थिकनेस होता है. अब बॉटल्स को हम बार बार यूज करते हैं, राइट? तो बॉटल्स आर नॉट सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ऑल्दो the kind of discharge like water bottles that we use in trains or like many water bottles that we don't use again, they become single use plastics, but from thickness consideration they are fine. but अगर हम वेजिटेबल लेने जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल के लिए जो पाउच लेते हैं, इसका थिकनेस 10 माइक्रॉन्स, 5 माइक्रॉन्स, ओके, अब 40 माइक्रॉन्स से ऊपर थोड़ा सा होता है, तो हम वो ज्यादा यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ बेसिक कंसिडरेशन कि जितना पतला प्लास्टिक उसकी थिकनेस होगी उसकी यूजेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 40 माइक्रॉन्स की थिकनेस की प्लास्टिक प्रिपेयर करना इज अ कॉस्टली बिजनेस एज कंपेयर्ड टू 10 माइक्रॉन्स की प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करना. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 माइक्रॉन्स की एक प्लास्टिक पाउच बन रही है, उसकी जगह 4 प्लास्टिक पाउच बन सकते थे 10 माइक्रॉन्स के. अब ये ज्यादा पॉल्यूशन करते ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ, नॉट ओनली अपॉन द वॉल्यूम बट अपॉन द नंबर ऑफ प्लास्टिक ट्रैशेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्पोज ऑफ, ओके, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट गोइंग टू बी लोकलाइज्ड, है ना. तो ये यहाँ पे वहाँ पे अगर जब ट्रैश लिटर करते हैं तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, एंड द हैवियर द प्लास्टिक द लेसर हैज इट्स मोबिलिटी, ठीक है. तो अगर हैवियर प्लास्टिक होगा तो उसकी मोबिलिटी लेसर होगी एंड उसका लोकलाइजेशन ज्यादा होगा. दैट विल बी इजियर टू डिटेक्ट, इजियर टू लोकेट एंड इजियर टू डिस्पोज ऑफ. अंडरस्टूड? अब ये तो हो गया कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने 40 माइक्रॉन्स क्यों रखा. दूसरा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2011 में आए, तो वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इज कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किस एक्ट के अंदर में आए, बिकॉज दीज आर रूल्स. अब ये सिंपल चीज है कि सारे रूल्स किसी ना किसी एक्ट के अंडर बनाए जाते हैं.
नो रूल कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम, ठीक है। लाइक कोई भी रूल्स अगर बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रिब्यूनल के लिए फॉर एग्जांपल अगर रूल्स बनाती है तो वो किसी एक्ट के तहत बनाती है, ठीक है। कोई भी लेजिस्लेटिव वैक्यूम में रूल्स गवर्नमेंट नहीं बना सकती। आइदर पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गवर्नमेंट के पास, दैट मीन्स पार्लियामेंट के थ्रू कोई एक्ट बने, उस एक्ट में ऐसा लिखा हो कि गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, बिकॉज दीज रूल्स आर नॉट फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट, दीज रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट, अंडरस्टूड। सेंट्रल गवर्नमेंट इन रूल्स को बनाती है, ना कि पार्लियामेंट बनाता है। और पार्लियामेंट में जो चीज बनती है उसके लिए आपको पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन फॉलो करना पड़ता है बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ बिल दैट इज पास्ड इनटू एक्ट एंड प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद वो एक्ट बनता है। बट दीज आर द रूल्स, दीज आर नॉट गोइंग टू हैव अ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर में है। तो पहले ही एक एक्ट बन चुका है, and that act is that we have already studied in one of our lecture. That act is Environmental Protection Act 1986. Okay, this is very important. One of the most important environmental regulations in India is EPA 1986. EPA 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एनवायरमेंट के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए कोई भी रूल्स बना सकती है। तो जो ये रूल्स बना देने की पावर है, इसी को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। अगर इसके थ्रू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाती है, किसी लोकल बॉडी गवर्नमेंट को मिल जाती है, किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आईएएस, दैट इज आल्सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओके, डेलीगेटेड मतलब ट्रांसफर्ड, लेजिस्लेशन मतलब पावर ऑफ लॉ मेकिंग, ट्रांसफर्ड पावर ऑफ लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग इज द पावर ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पावर है लॉ मेकिंग। बट व्हेन पार्लियामेंट इटसेल्फ पासेस अ लॉ, ठीक है, and delegates मतलब transfer its power of law making to some other body, that is called delegated legislation. So we are talking about EPA 1986. EPA 1986 में power of making the rules has been transferred to the central government with regard to environmental preservation and conservation. The minimum again falling under the pursuit of EPA 1986, plastic waste management rules 2011 were brought. और यहाँ पे लोकल बॉडीज को कंसिडर किया गया। अर्बन लोकल बॉडीज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया जिसको फोकस किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 ने, दोज वर अर्बन एरियाज नॉट रूरल एरियाज, ठीक है। तो व्हाट वुड यू से, इज इट अ पॉलिसी डेफिसिट? Is it a policy? I leave it to you to consider what it is. Is it a policy deficit or is it like is it a good policy? I leave it to your discretion. Again, urban local bodies. Urban local bodies मतलब the third tier of governance. Okay, like say the third tier of governance मतलब जिला परिषद, urban local bodies, but ठीक है, urban local bodies and rural local bodies, पंचायत bodies basically दोनों में difference है। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, जो सिटी में ऑपरेट करती लोकल बॉडीज हैं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, उनको अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब अर्बन लोकल बॉडीज को क्यों दिया गया? क्योंकि किसी भी शहर में जो साफ सफाई और ये सारी चीज़ों का काम, जो सिविल वर्क है, वो अर्बन लोकल बॉडीज के डोमेन में है। तो उनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज है, रिसोर्सेज है, और उनके पास ज़्यादा रीच है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रीच, ठीक है। तो अर्बन लोकल बॉडीज की रीच सबसे ज्यादा है लोकल पॉपुलेशन तक। ओके, तो अर्बन लोकल बॉडीज को पावर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली दी गई किस चीज की? फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। और हर स्टेट में स्टेट लेवल मैनेजमेंट कमिटीज बनाई गई। ये स्टेट लेवल मैनेजमेंट कमिटीज बेसिकली स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के अंदर भी हो सकती थी, उनके बिना भी हो सकती थी। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये एक अनदर टर्म आ गई। ऐसे ही सीपीसीबी भी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये दोनों अब ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, सॉरी कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी एंड एसपीसीबी वर मेड अंडर विच लॉ? तो वाटर कंजर्वेशन एक्ट। तो दीज वर मेड अंडर वाटर कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, 1974। सब्सिक्वेंटली इन बॉडीज को, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और तमाम प्रकार के अलग पॉल्यूशन कंट्रोल की भी पावर दे दी गई। बट दे वर इनिशियली फॉर्म्ड फॉर अंडर द वाटर प्रिजर्वेशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ओके,
तो सी हाउ वी आर, हमने यहाँ पे 2-3 चीजें प्रीलिम्स के हिसाब से देख ली, EPA 1986, SPCB, CPCB एंड ऑल, ठीक है। मैंडेटेड द रिटेलर्स टू चार्ज फॉर प्लास्टिक बैग्स, मतलब जो लोग प्लास्टिक में सामान दे रहे हैं उनको पावर दी गई कि आप, पावर बेसिकली मैंडेट किया गया, मैंडेट मतलब पावर देना, मतलब यू आर ऑप्शनली प्रोवाइडिंग देम अथॉरिटी, बट मैंडेट का मतलब यू आर कंपल्सिवली प्रोवाइडिंग देम द अथॉरिटी, मतलब दे आर कंपल्सिवली बाउंड टू चार्ज their users a certain amount of money for the use of the plastic bags. Later on, plastic waste management rule through 2016 में minimum thickness was increased from 40 microns to 50 microns and rural areas were also brought under the ambit. अब जैसे अर्बन लोकल बॉडीज को अर्बन एरियाज में, वैसे ही रूरल एरियाज में पंचायत को पावर दे दी गई. एप्लीकेबल टू इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड ओनर्स, वेस्ट जनरेटर्स. अब ये इंपोर्टर, ये लॉज किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल थे? सबसे पहले वेस्ट जनरेटर वो बेसिकली पीपल लाइक होटल्स, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर्स, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल वेस्ट जनरेटर कौन से हैं? होटल्स हैं. और कौन से हैं? इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है. तो ये सारे लोगों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज की गई फॉर द फर्स्ट टाइम. ब्रांड ओनर्स, आप किसी कपड़े का ब्रांड पहनते हो, किसी ब्रांड का कपड़ा पहनते हो, किसी ब्रांड का फोन खरीदते हो, ये जितनी भी पैकेजिंग में जो प्लास्टिक यूज हो रही है उसको रिकवर करने की जिम्मेदारी दी गई ब्रांड ओनर्स को. मैन्युफैक्चरर्स, whoever इज मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो इंसान मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक यूज कर रहा है पैकेजिंग के लिए, तो उस प्लास्टिक मटेरियल को रिकवर और रिसाइकिल एंड लाइक रिकवर फ्रॉम द यूजर्स, इसकी पावर या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स को दी गई एंड सिमिलरली इंपोर्टर्स को भी. अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस हैज आल्सो बीन वंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स. The question was, extended producer responsibility was introduced in India for the first time in which act or in which law? ठीक है, तो we will be dealing with that. But extended producer responsibility, what is extended producer responsibility? Extended producer responsibility बहुत सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगेन, अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ इज अ कंपनी, ठीक है, इट मैन्युफैक्चर्स समथिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट मैन्युफैक्चर्स मोबाइल, ठीक है. अब इस मोबाइल को पैकेजिंग करने में फॉर एग्जाम्पल 500 ग्राम्स प्लास्टिक यूज हो रहा है. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है. अब ये मोबाइल यूजर के पास पहुंच गया. यूजर क्या करेगा? अपना मोबाइल लेगा, इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा पैकेजिंग मटेरियल को. अब क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्रोड्यूसर है, इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जितना, अब ये पर मोबाइल 500 ग्राम अगर प्लास्टिक यूज कर रहा है या 50 ग्राम प्लास्टिक यूज कर ले अगर हम, ठीक है, तो अगर ये 100 फोन्स बना रहा है तो 100 इंटू 50 यानी 5000 ग्राम्स कुल मिला के प्लास्टिक ये पर्सन यूज कर रहा है पैकेजिंग में. इसका मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ये हुआ कि XYZ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यूजर से प्लास्टिक जो इसने दिया इसे, है ना, द प्लास्टिक दैट ही हैज यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग दैट प्लास्टिक बैक लाइज विद द प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर के, हाउ इज प्रोड्यूसर गोइंग टू लाइक for example, Apple is going to sell its phone. How is it going to recover plastic from the phone, the person who has bought the phone? इसके लिए क्या करेगा कि XYZ will enter into a contract with for example urban local body. Urban local bodies के पास रीच है डोमेस्टिक यूजर या पर पर्सन तक पहुंचने की. तो अर्बन लोकल बॉडीज कुछ लॉज फॉर्मुलेट कर सकती हैं अपने टेरिटोरी में, जहां पे वो यूजर्स को इंसेंटिवाइज करें कि इफ यू आर बाइंग दिस फोन एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो काइंडली डिस्पोज ऑफ योर वेस्ट विद अस एंड वी विल पे यू समथिंग. इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दिस इज हाउ इट कैन फंक्शन, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अब ऑफकोर्स अर्बन लोकल बॉडी अगर यहां से वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, तो इट विल बी पेइंग समथिंग एंड देन that cost will be transferred to XYZ. मतलब XYZ will be the ultimate person who is going to pay for the recovery of the
plastic waste material from the user. This is called extended producer responsibility. Understood? Again, there are few more points to it. State pollution control boards are made nodal agency. 2016 के रूल्स में अगेन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को पहले स्टेट मॉनिटरिंग कमिटीज बनाई गई थी. दे माइट बी अ पार्ट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नॉट, लेकिन अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को ही नोडल एजेंसी बना दिया गया फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. उसके बाद प्लास्टिक बैग्स विल बी अवेलेबल ओनली विद सर्टेन शॉपकीपर्स. तो अवेलेबिलिटी को भी लिमिट करने के लिए क्या किया गया कि जितने भी जो भी रिटेलर्स हैं दे विल हैव टू रजिस्टर विद द स्टेट सम स्टेट बॉडी, फॉर एग्जांपल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. देन ओनली दे कैन रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक फॉर देयर ओन यूज. इससे क्या होगा कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन मॉनिटर द यूज ऑफ प्लास्टिक इन द स्टेट, है ना. एंड रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी तो पीपल विल बी डिस्करेज्ड फ्रॉम यूजिंग प्लास्टिक्स. ओके, यहाँ पे दो मोटिव्स हैं. Manufacturing and use of non-recyclable plastic is to be phased out in 2 years. Non-recyclable plastics का यूज को फेज आउट कर देना विद इन 2 years. 2016 में कहा गया था. 2018 में, फिर 2018 में क्या आया कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे बाय 2022. Now, Amendment Rules 2018, phasing out of multi-layered plastic is now applicable. Okay, what is multi-layered plastic? आपने रियल का फ्रूट जूस पिया होगा या किसी भी प्रकार का टेट्रा पैक अगर आपने यूज किया है, फॉर एग्जांपल फ्रूटी का एक पैक होता है, तो वो फ्रूटी का जो पैक है इट इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स. वो जो पैकिंग है दैट इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स. दैट इंक्लूड्स, इट माइट इंक्लूड एल्यूमिनियम फॉइल, इट माइट इंक्लूड पेपर, इट माइट इंक्लूड प्लास्टिक्स एज वेल. तो नॉर्मल प्लास्टिक को तो रिकवर करना इजी है, बट अगर मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है तो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक की रिकवरी बिकम्स टफ. ओके, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन गवर्नमेंट ब्रॉट आउट दीज रेगुलेशंस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016, these bodies of manufacturing, like food manufacturing bodies, started opposing it, saying that it is going to increase the cost. If the government is going to phase out the multi-layered plastic, तो हम पैकेजिंग मटेरियल में क्या यूज करेंगे, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. बट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ सनशाइन सेक्टर. गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाएं. तो व्हाट गवर्नमेंट डिड वाज कि गवर्नमेंट स्टार्टेड, लाइक गवर्नमेंट ने बाद में अमेंडमेंट किया 2018 में, एंड इट सेड दैट नो, the only that multi-layered plastic is going to be phased out, which is non-recyclable, non-energy recoverable, और both with no alternative use. Non-recyclable का मतलब of course we all know कि जिसका recycling नहीं हो सकता. Non-energy recoverable, non-energy recoverable का मीनिंग वो है कि आप प्लास्टिक को बर्न करके कोई एनर्जी रिकवर नहीं कर पा रहे हो. लेकिन ऐसा कोई भी प्लास्टिक नहीं है, बहुत नैरो डोमेन में कुछ प्लास्टिक्स हैं जिनको आप बर्न करके कुछ एनर्जी रिकवर ना कर पाओ. क्यों? क्योंकि ऑल प्लास्टिक्स आर हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को आप बर्न करोगे तो आपको डेफिनेटली एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर, अगेन अमेंडमेंट रूल 2018 में अगर एक कोई प्रोड्यूसर ऑपरेट कर रहा है विद इन 2 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज, तो ही विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द व्हाट, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. एंड if a producer not only of plastic, of any good, is operating in more than 2 states, he will have to register with the Central Pollution Control Board or central authority. तो ये 2018 में amendment हुआ. Now government has brought the amendment of 2021 because government has been very focused on the phasing out of single use plastics. तो उसके लिए डेडलाइन काइंड ऑफ, नई डेडलाइन काइंड ऑफ बनाई गई है. वही these are the things that we are going to study. Phasing out of single use plastics from July 1, 2022. July 1, 2022 से we are going to phase out the single use plastic. अब कौन कौन से प्लास्टिक होंगे? See, this is from 2022. 1 year, आज से 1 साल बाद की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को टाइम देना चाहते हैं. Plastics and polystyrene like earbuds, plates, cups, glasses, cutlery, wrapping material and packaging films.
तो मोस्ट ऑफ द चीजें जो जोमेटो और ये लोग यूज करते हैं वो फेज आउट हो जाएंगी. दे विल हैव टू स्विच टू सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी. द सेकेंड वन इज कैरी बैग्स. कैरी बैग्स अगर 75 माइक्रॉन्स अभी क्या है 40 माइक्रॉन 50 माइक्रॉन है. 2018 के अमेंडमेंट रूल्स के 2016 के जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनके अंडर क्या है मिनिमम थिकनेस के कितनी रखी गई है 50 माइक्रॉन्स. लेकिन अब क्या होगा सितंबर 30 2021 नेक्स्ट मंथ के एंड से 75 माइक्रॉन से कम थिकनेस की प्लास्टिक मैन्युफैक्चर नहीं की जाएगी इंडिया में. एंड बाय द एंड ऑफ 2022 के एंड के बाद यानी 2023 के पहले दिन से जनवरी 2023 से 120 माइक्रॉन से कम की कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर नहीं होगी कंट्री में. ओके, तो दिस इज अ ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. आई होप यू अंडरस्टूड. Most of the things that we are concerned about was state pollution control boards, urban local bodies, gram panchayats का role, extended producer responsibility, और अब single use plastics. Understood? That is all about the phasing out of plastics and the amendment rules that we have studied. Now, the previous year MCQ for practice, this question came in 2019. The question is, in India, the extended producer responsibility was introduced in which of the following for the first time? It actually came into 2019. क्यों? क्योंकि 2016 वाले में extended producer responsibility plastic waste management rule में include किया गया था. तो see, UPSC is not going to look at very current issue, है ना? It is going to look at the evolving issues. क्यों? क्योंकि 2016 में amendment आया था और 2016 में रूल्स आए थे, 2018 में अमेंडमेंट रूल्स आए थे. ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी द करंट अफेयर्स. यू कांट गो फॉर द न्यूज, यू विल हैव टू लुक एट द इवोल्यूशन ऑफ द इश्यूज एंड देन यू विल हैव टू लुक फॉर द कीवर्ड्स. तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस किया गया था? द करेक्ट आंसर इज सी, द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में सबसे पहले क्या किया गया था? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेनोमेना इंट्रोड्यूस किया गया था. अभी हमने देखा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है. अंडरस्टूड? अगर ये क्वेश्चन होता कि इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप आंसर क्या होता? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. आई होप यू अंडरस्टूड. दैट इज ऑल फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स.